I guess we should get started. So आज का जो सेशन है that is going to be a little bit more interesting than the previous one because आज भी हम लोग कुछ vulnerabilities के बारे में भी बात करेंगे, but we will also take a look on the tools, especially the bug suite, and we will try it कि इसको practically use कैसे करना है. So most of the people जो हैं उनको like already बबसूर के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होगा. कुछ लोग ऐसे भी होंगे बीच में से कि जो उसको लाइक यूज़ करते होंगे या कुछ लोग ऑलरेडी वेब पेन टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं. बट स्टिल वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू इन अ वे कि जिसमें जो जूनियर्स हैं जिनको लाइक आइडिया नहीं है तो उनको जो है वो इशू आ रहा होगा. एंड जैसे नीचे कमेंट में भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जो है वो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, पिंग्स आ रही होती हैं अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. So remember that initially you don't need an operating system. If you are comfortable with the Windows, you can work with the Windows. Like for the testing environment and for my security work, I'm not comfortable with the Windows. Why? Because 3 से 4 साल हो गए हैं, ठीक है, मैं दूसरा operating system use कर रहा हूँ. So I'm only using Windows for the games. But nowadays जो मैं laptop use कर रहा हूँ इसमें Windows ही सिर्फ compatible है, बाकी जो है operating system नहीं हो सकते. So that's why I'm not able to like get any sort of other operating system like जो मोस्टली जो मेंशन भी कर रही हैं काली के बारे में बात करें. सो काली एंड सेकेंडली जस्ट मेक श्योर कि काली एक बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें बंच ऑफ सॉफ्टवेयर है. सो यू डोंट नीड काली फॉर एवरीथिंग. सो जस्ट मेक श्योर कि यू नो कि आप किस चीज़ के लिए किस चीज़ को यूज़ करें. एंड विजुअलाइजेशन जो है वो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट रिमेंबर कि विजुअलाइजेशन इज़ नॉट ऑलवेज द राइट थिंग बिकॉज आप इतना हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें जब भी तो इट्स ऑलवेज लाइक ए बिट हार्ड कि आप जो है वो इतना एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सब चीज़ों को मैनेज करें. बट पर्सनली मैं वो यूज़ करता हूँ वेरिएंट इसका, ठीक है, जिसमें कोई भी टूल इंस्टॉल नहीं होता. जुबंटू इज़ हैवी, ठीक है, इसमें ग्राफिकल यूज़र काफ़ी होता है, ठीक है. मैं आप लोगों को वैसे कुछ चैट में नेम जो है वो मैं लिख देता हूँ कि जो मेरी शुरू से फेवरेट हैं. बैकबॉक्स है, ठीक है, और एक लाइनक्स है, लाइट है. बैकबॉक्स में ऑलरेडी काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे और जो लिनक्स लाइट है इसमें कोई टूल नहीं है बट बहुत ही लाइट है एंड बहुत ही फास्ट है. ओके सो गेट्स बैक टू द टॉपिक. सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी ऑलरेडी. So my name is Sigurdali Zain Naqvi and I'm founder of SecurePwn. I have been working as a security engineer previously, but now currently I am going to join the Trillium as PM, as the project manager for cybersecurity projects. And I'm already the community lead since 2019. I'm working actively in the community. So over to the co-founder. Assalamu alaikum everyone. My name is Mahnur Jameel. I'm a computer scientist from Bahrain University. I'm currently working as a technology analyst at United Bank Limited. I'm the content lead at Pakistani Women in Computing and the co-founder of SecurePwn. I come from a very diversified background where I have worked as a product manager, as an AI engineer, as a developer, a vulnerability assessor, and a penetration tester. With 100 plus certifications from organizations inclusive of Microsoft, Cisco, Amazon, IBM, etc., I also had the pleasure to work nationally as well as internationally with industry tycoons such as Jazz, National Telecommunication Corporation, Trillium, PTCL, Ufone, etc. I was the judge for NASCON 2022, and I was also the first prize winner for the Telenor Game Bird competition this year. I'm a part of multiple communities across the globe, such as Pakistani Women in Computing, AnitaB.org, Women Who Code, Women Tech Network, etc. And I have also been recognized as one of the top women leaders in technology in 2022. I will also be representing SecurePwn at International Women's Day, held by Women Tech Makers at LUMS on 29th of April. So now, what is SecurePwn? SecurePwn is basically a company where it's also a company as well as a community where we provide security services all across the globe, and we aim to provide the best security services and empower youth to grow in cybersecurity field. So now I'd like to hand over the session to the founder of SecurePwn, Ali Zain Naqvi. Okay, Manur, I just edited your slides right after me. But let's recap for the previous session that we had. So previously, we talked about the cybersecurity, that what is cybersecurity, and we talked about the penetration testing. We went through the life cycle, that is penetration testing, that has basically the 5 major steps
The first is that he gathers the information about the target, and then he tries to communicate with the target. He interacts and validates that how the target is behaving. And right after that, the attacker or the pen tester plans everything, that vulnerability that they have to test. For example, the IDOR, the XSS, the SSRF. So all those are vulnerabilities. These are the most common vulnerabilities that are mostly tested in nowadays in the latest applications. And once the website is exploited, the penetration tester tries to get more information from the internal servers and try to exploit more. For example, if the attacker has gained access to the user access, he will try to escalate the privileges to the admin access. So right after that, we talked about some vulnerabilities. So we talked about IDOR, that how IDOR works, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. Then we talked about the XSS, and we even tried to know exactly that how we can test the XSS, where that is found, and what are the main and basic use case that we can use to exploit the XSS. Then we a little bit talked about SSRF. So SSRF is a very advanced topic and leads to the very complicated topics as well. Even the XSS does, but still we a bit talked about SSRF. So after that, again to the Manur. Manur, it's your turn. Okay, thank you, Ali. So now I'm going to talk about the CIA triad. So it comprises of three things: confidentiality, integrity, and availability. So now the question arises, what is confidentiality? Confidentiality is that you're ensuring that the secret information is protected from unauthorized access. So a person who's authorized has the ability to utilize your application only. For that, you use usernames, passwords, etc. Then comes integrity. Integrity is basically that you're ensuring that there is no modification that is being done in your data. So now there are two types of data. One that is in transit, that you have a sender and a receiver at different ends. And the other is that the data is in storage. So you have to ensure that the information is in the same format that was forwarded by the sender and is received in the same format that was intended to be received by the receiver. So an example of this is that you utilize encryption for that. Then comes availability. Availability is that you're ensuring that the information and resources that needs to be utilized by the legitimate users are available 24/7. So in the graph attached here, as you can see in integrity, we are catering two things. That if we have data in storage and we have data in transit, we are ensuring that there is no modification, and we're ensuring that the data is safe from unauthorized access. Then comes your confidentiality, that is also linked to integrity. Then comes in confidentiality, you're ensuring that your unauthorized access is enabled, and then comes your unauthorized utilization, and ensuring that in case your data is confidential, it is not being disclosed by unauthorized access. Then comes your availability, that in case that you have any fault tolerance, you always have backup for that, and you're also ensuring that the people who are the legitimate users of your application or your website. जिसमें पाइथन के जो नया वेरिएंट और टेम्पलेट का नया वेरिएंट है, अगर तो वो यूज नहीं किया जा रहा, कि जो बिल्ट इन सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करते हैं और वो यूजर एक्सेस को भी देखते हैं कि जो रिक्वेस्ट चीज की जा रही है वो पाइथन की एप्लीकेशन के स्कोप से बाहर तो नहीं है. अगर तो नहीं है तो दैट इज गुड, बट अगर वो बाहर है, ठीक है, और वो उसको वैलिडेट नहीं कर रहा या आपका कोड उसको वैलिडेट नहीं कर पा रहा, सो व्हाट कुड हैपन कि इनपुट जो आप दे रहे हैं, ठीक है, दैट मे रिजल्ट टू द कमांड एग्जीक्यूशन बाय द पाइथन. सो कमांड एग्जीक्यूशन इन माय सिस्टम, ठीक है, तो मेरा सिस्टम में आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो इफ देयर इज एन एप्लीकेशन रनिंग, एंड एप्लीकेशन में जो है वो प्रोटोटाइप टेम्पलेट इंजेक्शन जो है वो वहां पे मौजूद है. सो टेम्पलेट इंजेक्शन को टेस्ट अब कैसे करना है? अब नाउ यू नो कि आपकी कोई भी इनपुट है या कोई भी ऐसा डेटा है कि जो सर्वर रेंडर कर रहा है. नाउ कल हमारी इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी कि जब तक कोई डेटा आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आप वहाँ पे टेस्टिंग नहीं कर सकते. हाउ वुड यू एक्सप्लॉइट समथिंग कि जिसकी आपको एक्सेस ही नहीं है? लाइक एक्सेस के बारे में बात की थी, तो जो डेव होता है वो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता है. वी कैन नॉट चेंज द जावास्क्रिप्ट कोड, मगर जब हमारे पास कोई ऐसी इनपुट फील्ड आती है कि जिसका रिस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट या HTML का उसका पार्ट बनकर आता है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हम लोग वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव कंट्रोल ओवर समथिंग. सो सिमिलरली टेम्पलेट इंजेक्शन में भी यू ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ इनपुट पॉइंट. सो ऐसा इनपुट की जॉब वापस आकर बाउंस बैक कर रहा है फ्रंट एंड के ऊपर. सो देयर कुड बी अ चांस कि वहाँ पे एक्सेस हो, मगर अगर वहाँ पे जो है वो टेम्पलेट यूज हो रहा है, तो टेम्पलेट क्या काम करता है कि टेम्पलेट नॉर्मली वहाँ पे एक्सेस की वेल सैनिटाइजेशन कर देता है कि जिससे आपका
एक्सएसएस ट्रिगर हो नहीं पाता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग कि शायद यहाँ पे कोई फायरवॉल प्रोटेक्शन लगी हुई है कि जिससे हमारा एक्सएसएस जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं हो पा रहा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पे हो सकता है कि टेम्पलेट हो। जब टेम्पलेट होगा तो आपने फिर वहाँ पे टेम्पलेट को टेस्ट करना है। तो टेम्पलेट को पहले तो टेस्ट यूं किया जाता है कि आप जो है वो अनयूजुअल उसका बिहेवियर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हेन यू नो अबाउट टेम्पलेट के उसमें क्या क्या इनपुट आ सकती है, तो आप उस तरह के डेटा उसमें चेक करते हैं। आप वहाँ के एरर को चेक करते हैं कि अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सएसएस के लिए समटाइम ये चीज़ चेक करते हैं कि आप उसमें वेरिएबल या नॉर्मल टेक्स्ट की जगह जो है वो जो एक हमारे पास एरे होती है, आप एरे डालने की कोशिश करते हैं। एंड आप देखते हैं कि एरे की बेसिस पे ये कैसा बिहेवियर कॉज करिए, तो वो समटाइम एरर थ्रो करती है। वैसे ही आप डिफरेंट तरह की टेम्पलेट ट्राई करते हैं तो आप उस पर देखते हैं कि वो एरर थ्रो करती है। तीसरी जो टेम्पलेट की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि पाइथन जो होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसमें जो भी चीज़ होती है। तो अगर आप उसमें मैथमेटिकल इनपुट डालेंगे तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी वो एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट करके वो आपको एक तरह की आउटपुट निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 7+7 अगर आप करते हैं, कि जो मोस्टली एक कॉमनली यूज़ की जाने वाली टेस्टिंग टेक्निक है, उसमें वो आपको 7+7 का आंसर प्रिंट आउट करके देगा वापस। तो हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि उसने यूजर ने कैसे किया। सो अगर हम लोग इसके नॉर्मल पेलोड की बात करें तो जो बेसिक लेवल पेलोड हैं, ठीक है, जो पहले 5 हमारे पास वो बेसिक पेलोड हैं, और जो अगले पेलोड्स हैं वो एडवांस हैं। सो पहले 5 पेलोड टेस्ट करने के लिए एंड अगले पेलोड जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए। सो आप इवन के टेस्टर ऐसे भी करते हैं कि वो रैंडमली सारे के सारे पेलोड ट्राई करते हैं सारे के सारे पैरामीटर पे, कि ताकि किसी तरीके से हो सकता है कि उनको कोई ना कोई उसमें फ्रूटफुल थिंग या कोई इस तरह की अच्छी चीज़ मिल जाए। सो पहले आप पेलोड देख सकते हैं कि उसमें क्या कर रहा है कि वो 7+7 कर रहा है। सो टेम्पलेट टाइप पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि उसमें पाइथन ना रन हो रही हो सकता है कि उसमें जेंगो हो। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग कौन सा पेलोड जो होता है उसकी एग्जीक्यूशन से हमें कौन सा पेलोड पता लगता है। अब जो नीचे एडवांस पेलोड दिए हुए हैं ये सारे पाइथन के लिए, बट अगर आपका कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म है तो आप पेलोड उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड करते हैं या आप नेट से उसके अकॉर्डिंगली सर्च करते हैं। सो जो पहला टेम्पलेट का पेलोड दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या काम करेगा कि ये 7+7 को ऐड करेगा एंड 14 हमें आंसर कर देगा। एक दूसरे का टेस्ट केस ऐसा है कि जिसमें आप सिंगल ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट। एक होता है कि सिंगल करली ब्रैकेट से पहले आप जो होता है ये वाला साइन डालते हैं, ठीक है, यूएसडी का। एंड सिमिलरली आप डबल ब्रैकेट भी ट्राई करते हैं, एंड आप ये वाला जो फिफ्थ वाला है जिसमें परसेंटेज इज इक्वल टू 7+7 परसेंटेज है, ये भी एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है कि जिसका जो सिंटैक्स है वो ऐसा है। सो बेस्ड ऑन द सिंटैक्स जो है वो आप हर एक चीज़ की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे हमने एक्सएसएस की बात की थी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट का वैलिड सिंटैक्स और एचटीएमएल का वैलिड सिंटैक्स ही यूज़ करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो उस बेसिस पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब आपको एक आइडिया हो जाता है, जो हमारी पहली एग्जांपल है, हम लोग इसका बेसिक जो है वो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन ट्राई आउट करें कि इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास वल्नरेबिलिटी आ जाती है सो हम कैसे इस पर एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सारी निकाल के देता है, उसकी जितनी भी लिस्ट होती है आइटम्स की वो सारी हमें निकाल के देगा। सेकंड जो है उसमें फाइल रीड करने का है, कि वो etc पासवर्ड जो कि हमारे पास मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर एक फाइल है, ठीक है, वो हमें रीड करके देगा, तो उसका आउटपुट हमें आ सकता है। मगर क्या होता है कि जब आपका इनपुट बाउंस बैक कर रहा होता है तो उस केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टेम्पलेट इंजेक्शन जो है वो इजीली मिल जाएगा। ओके, सो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो टेम्पलेट इंजन चल रहा है जिसके अकॉर्डिंगली आपने पेलोड बिल्ड करना है वो कौन सा है। सो फॉर दैट पर्पस आपने क्या काम करना है कि आपने पेलोड उस अकॉर्डिंगली टेस्ट करना है। अब मैं आपको स्लाइड इंशाल्लाह जो है वो मैं दोनों स्लाइड आपको आज मिल जाएंगी, ठीक है, मैं कम्युनिटी को प्रोवाइड कर दूंगा दर्शक को। ओके, सो मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा हो। आई होप नाउ इट्स गुड। सो पहला जो आपका पेलोड है, ठीक है, पहला पेलोड डालने के बाद जो है वो आप दोनों तरह के पेलोड ट्राई कर सकते हैं। रेड एंड ब्लू के इसमें दिया हुआ है कि अगर कौन सा पेलोड वर्क करता है तो उसके बाद आप कौन सा पेलोड ट्राई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, अगर वो ट्राई वर्क करता है तो वो कौन सा, अगर वो नहीं करता तो आपने कौन सा ट्राई आउट करना, ठीक है। इस तरह से करके दिया हुआ है, तो जिसकी बेसिस पर टेस्टिंग करते करते आप फाइनलाइज करते हैं कि आपका जो टेम्पलेट है वो कौन सा है। अगर तो इसमें कुछ पेलोड ऐसे भी दिए हुए हैं कि जिसमें कन्फर्म होता है कि वो वल्नरेबल नहीं है। अब लाजमी नहीं होता कि हर एक चीज़ वल्नरेबल हो, समटाइम होता है कि वो वल्नरेबल नहीं होती। तो इसमें ये भी दिया हुआ है 2-3 पॉइंट के दिए हुए, जिसमें एक पॉइंट पर आकर वो नॉट वल्नरेबल है और एक में है वो अननोन है।
ठीक है, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो कस्टम या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की टेम्पलेट यूज़ कर रहे होते हैं कि जो मोस्टली वेल नोन नहीं है। सो अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, टेम्पलेट इंजेक्शन के बारे में, सो माई फेवरेट पर्सन कि जिसकी मैं लाइक वाइट पेपर भी काफ़ी पढ़ता हूँ सिक्योरिटी के ऊपर, वाइट पेपर की पोर्ट सुगर का एक मेजर ऑथर है, बबसूट की टीम में से है, ठीक है। और पोर्ट सुगर जो है उसका आप समझ लें कि लीड ऑथर, जो लैब जितनी उस पर चल रही है रिसर्च पेपर्स जितने आते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो से जेम्स के लिखे हुए हैं। सो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ उनके रिसर्च पेपर, एंड मोस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटीज जो मैंने पढ़ी हैं, जिस पे मैंने खुद भी आर्टिकल लिखे हैं काफ़ी, वो भी इन्हीं की वर्क के ऊपर बेस्ड हैं सारे। तो मैंने इसका एक लिंक भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, पोर्ट सुगर के ऊपर आपको जो है वो टेम्पलेट इंजेक्शन के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन के बारे में बात की हुई है, एंड मेजरली जो है वो इसमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के बारे में जो है वो ज़्यादा बात की हुई है। तो आपको इसकी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है टॉक इन की एक इवेंट पे, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस लेवल तक टेम्पलेट इंजेक्शन में जा सकते हैं। प्लस इसके ऊपर आमतौर पर भी लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ज़्यादा। ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल। जिस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो एक अकाउंट फॉर एग्जांपल हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन व्हाट वी डू इज कि हम लोग वहाँ पे इनपुट में हम लोग टेम्पलेट डाल रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग आउट द टेम्पलेट पेलोड, ठीक है, जिसमें 7x7 है एंड नीचे भी 7x7 है, ठीक है। सो जस्ट टू ऑब्जर्व कि हमारे पास इसका पॉसिबल रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है। सो व्हेन वी ट्राई आउट, तो जो हमारे पास नेम आ रहा है दैट इज 49। सो नाउ वी हैव कंफर्मेशन कि हमने 7x7 ट्राई किया था एंड इट 49 बाय एक्सीडेंट नहीं है, बिकॉज वी नो कि 7x7 के एक्चुअल जो रिजल्ट है दैट इज 49। सो इन दिस वे वी आर कंफर्मिंग कि यहाँ पे प्रोटोटाइप बेसिकली जेम्स कैटल का ही रिसेंटली जो रिसर्च है वो प्रोटोटाइप पोल्यूशन पे है, एंड आई वाज एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट। आई वांटेड टू शेयर दैट वेल एज वेल, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल है तो आई जस्ट डिडंट, बट वो बार बार मेरे मुंह में वही आ रहा है। बट सो टेम्पलेट इंजेक्शन, सो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि वी हैव द टेम्पलेट इंजेक्शन। ओके, इसके बाद कंपनी पे डिपेंड करता है कि whether you should go for more exploitation, at least some sort of valid proof of concept कि जिससे आप प्रेजेंट कर सको कि ये ना जस्ट vulnerability आपने आइडेंटिफाई की है बट यू कैन एक्सप्लॉइट इट। समटाइम ऐसा होता है कि इसे ज़्यादा आप एक्सप्लॉइट कर नहीं पाते, आपको फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हैं, या आप जो फ्रेमवर्क चल रहा है रन टाइम पे उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल कैट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि उस लेवल पे प्रोटेक्शन लगी हुई है। सो उस केस में जो है वो आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि आप उसको सक्सेसफुली ना ही एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ना ही आपके पास कोई प्रूफ है कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ये भी डिमांड करती हैं कि डोंट गो फॉर द एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया जस्ट टेल अस एंड हम लोग जो है उसको खुद रिव्यू कर लेंगे। ओके, लेट मी ड्रिंक द वाटर एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लोकल फाइल इंक्लूजन। सो ऐसे ये सारी वो वल्नरेबिलिटीज हैं कि जो मोस्टली पेन टेस्टिंग में प्लस मोस्टली जो है वो बग बाउंटी में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आती है, और ये स्टिल एग्जिस्ट करती है। बट अभी तक स्टिल हैक द बॉक्स पे मैं प्रैक्टिस समटाइम करता हूँ, कोई अगर मैं उस पर, तो स्टिल मुझे वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं उसके ऊपर। Okay, sorry. So we have the local file inclusion. So before talking about local file inclusion, हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि through the command, through the shell, और we can say like through the environment variable, हम लोग folder switch कैसे करते हैं। So for example, if I want to like, अच्छा मैं ऊपर commands आपको बता देता हूँ। तो CD command में क्या होता है कि CD के बाद आप कोई भी फाइल डायरेक्टली फाइल का पाथ देते हैं, सॉरी फोल्डर का पाथ। सो CD इज अ चेंज ये थी जिन्होंने इंटरनेट इशू किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ओके, सो आई कैन नॉट सी द चैट्स फॉर नाउ, आई डोंट नो व्हाई। Just let me join again. Let me just refresh it. Okay, so we were talking about the folders
कि हम लोग फोल्डर स्विच कैसे करते हैं. So we have the cd command and then we have to provide the path. Okay, then the pwd command, pwd जो होता है वो आपको बताती है कि आप करंटली किस फोल्डर में. So इसके अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, there are some tricks. So ट्रिक्स में क्या है कि what I'm trying to do is कि जो पहला डॉट होता है, ठीक है, डॉट मीन्स कि आप इस करंट फोल्डर की बात कर रही है जिसके अंदर आप ऑलरेडी हैं. सो हम साइड पे पाथ अपना देख सकते हैं, ठीक है, इसमें सी यूजर्स एंड वेलकम फोल्डर में हम लोग. तो जब मैं करता हूँ ना cd एंड फुल स्टॉप ओनली, ठीक है, ओनली फुल स्टॉप, सो व्हाट दैट मीन्स इज कि मैं अभी करंट फोल्डर की बात कर रहा हूँ. सो मैं डॉट के बाद अगर मैं स्लैश डालता हूँ तो स्लैश के बाद मैं फर्दर भी आगे पाथ दूंगा. सो मे बी मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर की और फोल्डर भी है, सो आई कैन डॉट स्लैश एंड देन मैं उस फोल्डर का नेम लिखूंगा. सो पहले डॉट के साथ पता लग रहा है कि हम टॉकिंग अबाउट करंट फोल्डर, तो स्लैश के बाद मैं जिस फोल्डर का नाम लिखूंगा दैट मीन्स कि मेरी इस करंट डायरेक्टरी में ही वो फोल्डर है. अगर तो वो नहीं है तो वो उस पर एरर थ्रो करेगा. Okay, so if we put full stop and slash and after that we put two dots, तो टू डॉट डालने का क्या मतलब है कि now we are talking about one directory out. So हम लोग वेलकम के फोल्डर में थे, ठीक है. So जब हमने full stop slash full stop डाला, so that means कि now we are talking about one folder out of this current folder. So पहले वेलकम में थे, so जब डॉट डाले तो now we are talking about यूजर्स फोल्डर. यूजर्स के बाद उसके अंदर अब जो फोल्डर है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ. सो हमें पता है कि जब वेलकम से हम लोग बाहर आ गए हैं यूजर्स में, तो यूजर्स के अंदर वेलकम का फोल्डर अगेन से है. जब अगेन से वेलकम का फोल्डर है तो मैंने क्या काम किया, वेलकम का फोल्डर आके दोबारा डाल दिया. सो ये दोबारा से एक स्टेप बाहर जाकर उसी फोल्डर में वापस आ गया. सो क्या हुआ कि मैंने जब pwd कमांड रन की, सो मैं अगेन से उसी वेलकम फोल्डर के अंदर हूँ. चूंकि मैं एक फोल्डर बाहर जाकर मैं दोबारा से वेलकम में आ गया. उसके बाद मैंने नीचे क्या काम किया है कि cd, देन मैंने फुल स्टॉप डाला है, देन मैंने एक बार दो डॉट डाले स्लैश, जिससे मैं एक फोल्डर बाहर आ गया, ठीक है. तो वेलकम से बाहर निकलकर आई गॉट इनटू यूजर्स. देन मैंने अगेन से दो डॉट डाले. फिर दो डॉट डालने के बाद मैं अगेन से एक फोल्डर बाहर आ गया एंड आई गॉट इनटू सी. अगर मैं यहाँ पे अगेन से दो डॉट डालता हूँ तो सी के बाद कोई फोल्डर पीछे नहीं है, तो जिसके बाद मुझे एरर थ्रो हो जाएगा. सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने सी में जाने के बाद अगेन यूजर्स मैंने लिखा, यानी नाउ आई एम गेटिंग इनटू यूजर एंड देन वेलकम एंड अगेन गेटिंग इनटू द वेलकम. और उसके बाद मैंने जब अपना pwd कमांड एग्जीक्यूट किया, सो अगेन इट्स सेइंग कि हम दोबारा से वेलकम के अंदर हैं. ओके, सो हम लोग पहले चेंज डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो डायरेक्टरीज के फॉर्म में चेंज होती हैं. सो फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो है वो एक फोल्डर हम लोग लेते हैं जिसमें हमारे पास www html, ठीक है, ये हमारे पास एक फोल्डर है. अभी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं करता हूँ cd डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, तो क्या होगा कि हम लोग एक फोल्डर बाहर आ रहे हैं, दो डॉट जो हमने इकट्ठे डालनी, ठीक है. इसका मतलब है कि हम लोग एक फोल्डर बाहर आ रहे हैं फ्रॉम जो करंट फोल्डर है हमारा. सो हम लोग html से बाहर आ गए एंड नाउ वी आर इन www. अच्छा, इसकी जगह अगर हम लोग करते cd एंड फुल स्टॉप ओनली, तो फुल स्टॉप का मतलब है कि मैं इसी करंट फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ अगेन से, तो मैं अगेन से वेयर www html के अंदर ही होता. अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, तो इसका क्या मतलब है कि मैं दो फोल्डर बाहर हैं, जो दो इकट्ठे डॉट्स है, इसका मतलब है कि मैं दो फोल्डर बाहर हूँ. तो दो फोल्डर बाहर आने से क्या हुआ है कि मैं जो हूँ वो वेयर के अंदर आ गया, यानी html एंड www से मैं बाहर आ गया. सिमिलरली अगर जो उसकी सेकंड लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, सो दैट इज द बिट इंटरेस्टिंग कि अगर मैं पहला फुल स्टॉप नहीं डालता एंड आई डायरेक्टली राइट स्लैश वार, तो डायरेक्टली स्लैश लिखने का क्या मतलब है कि नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट फोल्डर बट आई एम टॉकिंग. सो रूट डायरेक्टरी में क्या होता है कि जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हमेशा डायरेक्टरी रूट होती है. तो रूट के अंदर सारे के सारे फोल्डर की लिस्ट होती है, जिसमें वेयर भी आता है, जिसमें होम का फोल्डर भी आता है, रूट का फोल्डर भी आता है, etc का फोल्डर भी आ जाता है, ठीक है, और मल्टीपल सारे फोल्डर आ जाते हैं. सो आपने फुल स्टॉप नहीं डाला, सो दैट मीन्स कि आप उस रूट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं आप उनके बारे में बात कर रहे हैं. सो एक वेयर का फोल्डर वहाँ पे होता है कि जो हमारे पास ऊपर पहली एग्जाम्पल में पहला फोल्डर है. सो नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द फर्स्ट फोल्डर फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, दैट इज वेयर. सो वेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको www जो है
वो फोल्डर उसके अंदर मिलेगा, एंड अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको HTML का फोल्डर मिलेगा। और जो लास्ट एग्जांपल में अगर आप CD और एमएस सिर्फ वार स्लैश करते हैं, अगर हम लोग पहले वाली जो डायरेक्टरी के अंदर हैं उसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास var स्लैश www/html जो है उसके अंदर पहले से कोई भी नहीं है। तो अगर आप फोल्डर का नेम लिख देते हैं, सो दैट आल्सो मींस कि इस करंट फोल्डर के अंदर ही कोई एक और फोल्डर है कि जिसके बारे में आप बात करें। तो हमारे पास इसके अंदर कोई var का फोल्डर नहीं है, तो जिसकी वजह से वो एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है कि var फोल्डर नॉट एग्जिस्टिंग इन var www/html। ओके, सो अब आपको समझ आ गई होगी कि CD कमांड और ये जो है वो कमांड वर्क कैसे कर रही है। सो हमारे पास जो लोकल फाइल इंक्लूजन होता है उसका मेजर रीजन भी यही है। हम लोग अब बात करते हैं कि चूंकि हम लोग वेब एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन जो है वो कहाँ किस फोल्डर में नॉर्मली होस्ट की जाती हैं। पहले हम लोग विंडोज़ के बारे में बात करते हैं। विंडोज़ में वो कहाँ पे होती है? विंडोज़ के अंदर वो अगर हमारे पास IIS का जो होता है सर्वर चल रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जो रूट डायरेक्टरी होती है दैट इज सी के अंदर वो inet POB के अंदर होता है, एंड देन वी हैव www रूट। इसके अंदर भी समटाइम हमारे पास 3 से 4 फर्दर फोल्डर होते हैं कि जिसके अंदर हमारा फाइनल जो होता है HTML का पेज या PHP का पेज या कोई भी फ्रेमवर्क है वो चल रहा होता है। बट स्टिल जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी जो होती है वो ये वाली होती है। इसके अंदर अब 3 लेयर्स फोल्डर की हैं, 4 फोल्डर्स हैं, ये जितने भी हैं उसके बाद पता लगता है। देन वी हैव XAMPP। अगर हमारे पास XAMPP चल रहा है तो हमारे पास क्या होता है कि वो C/XAMPP हमारे पास होता है htdocs, एंड देन सिमिलरली जो वैम्प हमारे पास है उसमें भी wamp/www है। फॉर एग्जांपल अब आपको कोई फाइल रीड करनी है, ठीक है, फाइल रीड करने के लिए कमांड होती है cat कमांड है। तो अगर आपको C के अंदर कोई फाइल रीड करनी है, हाउ यू विल डू इट? cat देन स्पेस देन फुल स्टॉप स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। जैसे क्या होगा कि दो डॉट स्लैश दो डॉट, इससे आप दोनों फोल्डर से बाहर आ गए। नाउ यू आर इनटू C, एंड C के अंदर कोई भी फाइल है या C में कोई और फोल्डर है, आप उसका नेम लिखे स्लैश आगे अगले फोल्डर का नेम, तो आप वहाँ से कोई फाइल रीड कर सकते हैं या आप फोल्डर वो वाला एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये लिनक्स में भी सेम जो हमने रूट डायरेक्टरी बताई है कि जिसके अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद है। ओके, सो नाउ इशू क्या है हमारे पास? सॉरी, जस्ट डिस्प्ले द स्लाइड्स। ओके, हमारे पास इशू क्या होता है? इशू ये आता है कि जब भी कोई वेब एप्लीकेशन जो है वो कोई ना कोई हमारे पास पेज लोड कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास जो पैरामीटर दिया हुआ है दैट इज अबाउट पेज। हमारे पास कोई पेज का वेरिएबल आ रहा है। इसमें अटैकर ने किया क्या है कि अटैकर ने वेरिएबल में से जो ऊपर का हमारे पास पेज का पैरामीटर दिया हुआ है, वो वेरिएबल या वो पैरामीटर क्या काम कर रहा है कि वो पेज फेच करके लाता है। नॉर्मली इसमें क्या एग्जांपल हो सकती है? इसमें लिखा हुआ होगा index.php या app.php या page.php। वो पेज जो होगा page.php वो उस टाइम पे करंट फोल्डर के अंदर है, जो उसका करंटली वो जिस फोल्डर के अंदर उसकी एक्सेस है। अटैकर यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2./2./2./2./ इससे वो 4 लेयर्स ऑफ फोल्डर जो है, बल्कि 5 लेयर, वो 5 लेयर बाहर आ गए। 5 लेयर बाहर आने के बाद उसने क्या काम किया? वो एक न्यू फाइल जो है उसको रीड कर रहा है वहां पे। हमारे पास 5 फोल्डर बाहर आने के बाद बेसिकली वो जो रूट डायरेक्टरी है वो उस रूट डायरेक्टरी में बाहर आ गया। रूट डायरेक्टरी में आने के बाद उसने वहाँ पे etc का एक फोल्डर होता है, वो उसके अंदर गया जिसमें PASSWD की एक फाइल होती है। तो उसने वो फाइल वहाँ से रीड कर ली, जो कि मोस्टली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज़ की जाती है। जिससे क्या हुआ कि उसका जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट आपके सामने आ गया जो उस फाइल के अंदर है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो सर्वर एक सिस्टम की फाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल जो फाइल पड़ी थी अपनी PHP की, आपने उसको बाईपास करके उससे जो है वो बाहर जाकर तो कोई सिस्टम की या ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी फाइल जो है वो रीड कर लिया। अगर तो आप इस तरह से सिस्टम फाइल रीड कर सकते हैं, सो अगेन यू हैव द एक्सेस कंट्रोल इश्यूज, कि जिसमें जो है वो आप लोकल फाइल इंक्लूजन को एक्सप्लॉइट करके आप कोई दूसरी फाइल रीड कर पा रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंसिटिव फाइल है। etc पासवर्ड की जो फाइल होती है वो बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव फाइल होती है, वो कोई भी यूजर रीड नहीं करना चाहिए। बट अगर वो कर पा रहा है तो दैट इज अ ह्यूज वल्नरेबिलिटी।
ओके, सो अब आपको यहाँ से भी आइडिया ठीक है हो गया कि ये जो है वल्नरेबिलिटी होती क्या है। एंड रिमेंबर के जो लोकल फाइल इंक्लूजन है, हम लोग कल इस पे अगेन से बात करेंगे। एंड आप लोगों को मैं एक टास्क भी दूंगा, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे हैक द बॉक्स। सो जस्ट मेक श्योर कि मैं आपको एक बार बताऊं कि आपने पोर्ट्स फिगर से वेब सूट एंड हैक द बॉक्स को अपने तैयार रखना है, अकाउंट्स वगैरह अपने, बिकॉज कल मैं आपको एक ऐसी एक्टिव मशीन दूंगा कि जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन वैसे नेट पे मौजूद होगा नहीं। तो बट मैंने चूंकि खुद को एक्सप्लोर किया, ठीक है, और मैं आपको उसमें पहले ही हिंट दे रहा हूँ कि उसमें लोकल फाइल इंक्लूजन है। सो आप लोगों ने मुझे उस एप्लीकेशन में से लोकल फाइल इंक्लूजन को एक्सप्लोर करके दिखाना है। सो जस्ट गेट रेडी, गेट प्रैक्टिस ऑन द पेलोड्स एंड चीज़ें आप तैयार रखें ताकि कल जो है वो हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकें। ओके, सो देन द अदर वल्नरेबिलिटी दैट वी हैव इज ओपन रीडायरेक्ट। कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो ओपन रीडायरेक्ट को वल्नरेबिलिटी नहीं समझती, बट दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट कि आप एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके क्या इम्पैक्ट बना रहे हैं। जैसे हमने कल आईडोर के बारे में बात की थी कि अगर आप आईडोर से अगले का यूज़र नेम फैच कर पा रहे हैं तो वो यूज़र नेम हो सकता है कि वो जो बंदा उसकी प्रोफाइल खोले उसको यूज़र नेम शो हो जाए। सो इसमें कोई सेंसिटिव इम्पैक्ट नहीं है। या जो जो हमने CI ट्रेड के बारे में बात की है, सो बेसिकली आपके इम्पैक्ट उस पर बेस कर रहा होता है। सो उसका रीज़न यही बताने का ज़्यादा था। आपने ओपन रीडायरेक्ट निकाला है, सो यू हैव टू प्रूव योर इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द CIA ट्रेड, बिकॉज ये मैं काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी वल्नरेबिलिटी कंपनी को ऐसी बताई है कि जिनका रिस्पॉन्स मुझे यही आया कि इट इज़ बेसिकली नॉट लाइंग इन द CIA ट्रेड। सो आप इसका इम्पैक्ट हमें प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप हमें इसका प्रूव करते हैं इम्पैक्ट, तो देन इट इज ओनली एक्सेप्टेबल। सो ओपन रीडायरेक्ट इस तरह से काम करता है एंड ओपन रीडायरेक्ट इज वेरी इजी टू फाइंड। सो होता क्या है कि एक जो वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर समटाइम कोई ऐसा पैरामीटर होता है, कोई इस तरह की वैल्यू होती है कि जो हमारे पास किसी न किसी दूसरे या उसके अपने पेज की तरफ लेके जा रही होती है। 80 to 90% केसेस में वो जो जिस लिंक पे लेके जा रही है वो उसका अपना ही लिंक होता है। बट समटाइम ऐसा भी होता है कि वो किसी न किसी और लिंक पे लेके जाती है कि जब आप वो लिंक क्लिक करते हो, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म करते हो या आप जब साइन अप कर लेते हो, ठीक है, ये साइन इन करते हो, तो आपको वो किसी न किसी दूसरे पेज पे ले जाती है। और समटाइम ऐसा होता है कि ऊपर कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर दिया हुआ होता है गेट के पोस्ट का कि जिस पैरामीटर में गेट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, कि जिसमें कोई ना कोई URL आगे दिया हुआ होता है पहले से, और वो उस URL पे लेके जाता है। तो अगर आप उस URL को चेंज कर लो, अगर आप अपना URL या रैंडमली कोई भी URL डालते हो, तो वो आपको उस पे ले जाता है। सो व्हाट कुड बी पॉसिबली एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम हियर। तो इसमें एक सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी जो एक्सप्लॉइटेशन की बनती है, दैट इज कि हो सकता है कि आप जब साइन इन करते हो और आप साइन इन करके वो जिस पेज पे लेके जा रहा है, एंड आप उस पेज को चेंज कर सकते हो, आप उससे अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हो। और आप जो है वहाँ पे क्या काम कर रहे हो कि आप उधर सेम पेज बना देते हो। जैसे कि कंपनी का पेज है, आपने सेम पेज बिल्ड किया है कि जो कि अगेन से आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है। तो आप सारी बातें वहाँ पे ट्रस्ट कर रहे होगे कि शायद मैंने गलत डाला है तो मुझे दोबारा से इस पेज पे ले आया। तो वहाँ पे जब आप राइट वाला ईमेल एंड पासवर्ड वहाँ पे डाल देते हैं तो वो आपको दोबारा से ओरिजिनल साइट पे ले जाता है वो पेज। बट बीच में क्या हुआ है कि बीच में जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो हैकर ने स्टील कर लिया, क्योंकि वो जो उसके फेक पेज था, बेसिकली आप बाय एप्लीकेशन ओपन रीडायरेक्ट के थ्रू उस पेज पे शिफ्ट हो गए। एंड समटाइम ऐसा होता है कि बेसिकली इसका इम्पैक्ट यूं ही बनता है कि जो अटैकर होता है वो यूजर को ट्रिक करके वो उसको सेफ वेबसाइट दिखाता है जो उसकी अपनी वेबसाइट है, बट जब वो लिंक खोलता है तो आगे जो उसका लिंक दिया हुआ होता है वो ओपन रीडायरेक्ट का होता है। तो ओपन रीडायरेक्ट से फिर क्या होता है कि यूजर जो होता है वो अपने पेज छोड़ के, अपनी वेबसाइट छोड़ के वो दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाता है। सो ओपन रीडायरेक्ट अगेन डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट। सो ओपन रीडायरेक्ट की जो हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जो मोस्टली नॉर्मली देखने को मिलती है कि आप क्या काम करते हो कि आप पैरामीटर के बारे में देखते हो कि कौन सा पैरामीटर जो है वो उसको लिंक कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारे पास एक साइन अप का एक एंड पॉइंट है और आगे हमारे पास वेरिएबल जो है वो दिया हुआ है रीडायरेक्ट का। तो रीडायरेक्ट करने के बाद वो site.com/प्रोफाइल पे उसको कर रहा है, लेके जा रहा है। समटाइम ये भी होता है कि वो सिर्फ स्लैश प्रोफाइल पे लिखा हुआ होता है, एंड समटाइम वो नहीं भी होता, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है। सो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है कि आप जैसे ही साइन अप करते हैं, ठीक है, तो वो आपको इस पेज पे ले जाता है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर जो अटैकर है वो क्या काम करता है कि सेम वेबसाइट का जो साइन इन का पेज है वो बनाता है और वो फेक पेज बनाता है और अपनी साइट पे होस्ट कर देता है। उसके बाद वो आपको एक लिंक भेजता है कि जिसमें ऑलरेडी स्लैश साइन अप है एंड रीडायरेक्ट के आगे उसकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है।
तो आपको आइडिया नहीं होता, आप वहाँ पे साइन अप करते हो, जब साइन अप करने के बाद वो आपको साइन इन वाले पेज पे ले जाता है कि जो कि एक फेक पेज है। तो वहाँ पे आप साइन इन करते हैं, तो साइन इन करने से क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड, वो हैकर के पास पहुँच गया। तो हैकर इस वे से बहुत सारे अकाउंट्स इकट्ठे भी कर सकता है, एंड इकट्ठे करके वो काफ़ी सारे इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है आपके साथ या मे बी ऑन द एप्लीकेशन। सो अगेन, आपको अगर ये सब चीज़ें, ये वेलेबिलिटीज जितनी भी हमने आज बात की है, हमने कल बात की थी, अगर आपको ये सारी की सारी टेस्ट करनी है, यू वांट टू लर्न इट, यू वांट टू प्रैक्टिस इट, अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ या सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, सो ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंडेड इज द पोर्टसुगर, स्पेसिफिकली फॉर वेब एप्लीकेशन। क्योंकि आपको जितनी भी वेलेबिलिटीज होती हैं, आपको सबकी बेस लाइन यहीं से मिलती है। सो आप अगर सारी की सारी वेलेबिलिटी यहाँ पे जो लैब्स आप उनको सॉल्व कर लेते हैं, सो ऑनेस्टली आपको इतना आइडिया हो जाता है कि आप पेन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेसिक जूनियर लेवल की कोई सर्टिफिकेशन या आपको ट्राई हैक नहीं, इन चीज़ों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगेन, इफ़ यू हैव बेसिक्स, या आप डायरेक्टली जो है वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन अफोर्ड, तो आप जो है वो ट्राई हैक मी की मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, कि जो कितनी एक्सपेंसिव नहीं है। आई गेस 3000 के अराउंड पाकिस्तानी बनती है, 2500 मेरे ख्याल से, या 3000 जो है वो भी करंटली इसका अंदाजन रेट चल रहा है। सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अभी हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे, वी विल टॉक अबाउट द वेब सूट, एंड देन वी हैव a little bit talk about the operating system as well. सो उसके पहले जो थ्योरेटिकली आज हमने पढ़ा है, अगर आपके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है, सो मेक श्योर कि आप क्यूए का जो सेक्शन है, ठीक है, वो आप इसके अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड द क्यूए, तो आप जो है वो चाहें तो इसमें ड्रॉप कर सकते हैं, चाहें तो आप बेशक बाद में कर लें। सो तब तक जो है वो हम लोग बग सूट के बारे में बात कर लेते हैं, कि हाउ वी कैन यूज द बग सूट। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू वांट टू फॉलो लाइक स्किरपॉन अकाउंट, माय अकाउंट, जो हमारे को फाउंडर थी मानूर जमील, यू कैन फॉलो देम, एंड देन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। सो इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, अगर आपको क्वेश्चन मुझसे पर्सनली है, ठीक है, तो आप मुझसे चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भी, कि जो मेरा अबाउट है, ठीक है, आप पहले अबाउट के एक बार रीड कर लें बिफोर यू टेक्स्ट मी। ओके, सो वी विल जंप इनटू द प्रैक्टिकल स्टफ। सो हम लोग वेब सूट के बारे में बात करेंगे। सो आई विल ट्राई टू शेयर माय स्क्रीन। So I'm very hopeful that you don't see my private stuff. Just let me turn off a few things. Actually, it is safe to share this screen, because just people are learning about cybersecurity, so you know, अब फिर से मुझे भी इनसिक्योर फील हो रहा है स्क्रीन शेयर करते हुए। So I hope you can see it now. Visibility है इसकी। ओके, सो हियर इज पोर्टसुगर, के जिसके ऊपर जो है वो आपको मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पोर्टसुगर है कि आप अपना पासवर्ड चूज नहीं करते इस पर। सो पोर्टसुगर खुद आपको पासवर्ड प्रोवाइड करती है, एंड वो पासवर्ड जो है वो आप अपने पास सेव कर सकते हैं। ओके, सो दोज पीपल आर लाइक, ये वो लोग हैं जितने भी आपके सामने पहले 3 पिक्चर शो हो रही हैं, कि जिनको मैंने खुद अपने सीखते टाइम पे मैंने पढ़ा है काफ़ी ज़्यादा। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्सन, द स्टॉक, एंड देन दिस पर्सन, एंड देन दिस लेडी, इसका नाम था इनसाइडर पीएचडी के नाम से इनका अकाउंट है। सो अगर आपको एपीआई के ऊपर बात करनी है या आपको एआई पे बात करनी है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। सो ये हमारे पास टैब होता है रिसर्च का। इस पे जो है वो आपको डिफरेंट तरह के जो लेटेस्ट इश्यूज हैं, बिल्कुल जो लेटेस्ट एंड अप टू डेट हैं, आपको उनके बारे में पता लगता है। सो जैसे मतलब ब्लैक बॉक्स, सो विदाउट डॉस। अब ये है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस इशू है, तो आपको इससे पहले जो है वो प्रोटोटाइप पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है, ठीक है, अच्छा प्रोटोटाइप जो है वो डॉस कैसे करता है, देन वो सर्वर साइड पे नॉर्मली कैसे अटैक करता है, एंड देन जो है वो हम लोग उसकी सेफ्टी
I guess internet is little bit slow, but हम लोग एकेडमी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकेडमी का दिया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास लर्निंग का होता है, ठीक है, और हमारे पास देन लैब्स हैं। सो वल्नरेबिलिटी लैब्स वो हैं कि जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। सो इफ आई गो टू व्यू ऑल, सो व्यू ऑल में क्या होता है कि आपके पास जो होता है वो सारी की सारी लैब्स दी हुई होती हैं विद द टाइटल, एंड आप जो यहाँ से मिस्ट्री लैब चैलेंज जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आप जैसे जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्लिक करने से क्या होता है कि वो आपके पास जो होता है नया पेज खुल जाता है, ठीक है, जिसमें वल्नरेबिलिटी उसका चैलेंज दिया हुआ होता है। और समटाइम ये होता है कि आपको जो है उसमें इस तरह के भी इशू दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उसमें सोल्यूशन भी समटाइम मोस्टली, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सोल्यूशन बताए हुए होंगे। तो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो यू कैन टेक अ लुक इनटू द सोल्यूशन कि सोल्यूशन जो है वो उसका किस तरह से है और कैसे काम कर रहा है। देन वी हैव द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट में आपको बब सूट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कम्युनिटी एडिशन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन डाउनलोड द प्रीमियम, सॉरी द कम्युनिटी वेरिएंट। अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो श्योर यू कैन गो फॉर दैट। और कुछ लोग होते हैं जो क्रैक वगैरह ट्राई आउट करते हैं। सो रिमेंबर कि क्रैक जो होते हैं उसमें मेलवेयर एम्बेड होने के बहुत ज़्यादा डर होते हैं। इफ़ यू कैन क्रैक इट योरसेल्फ तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट क्रैक इज नेवर रिकमेंडेड कि आप जो है वो क्रैक को इतना ट्राई आउट करें, बट स्टिल इट्स अप टू द यू कि अगर आप करना चाहते हैं। सो वी विल टेक अ लुक ऑन द वेब सूट कि वेब सूट जो है उसका किस तरह का इंटरफेस है, उसमें क्या क्या चीज़ है। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रीमियम वेरिएंट पे आपके प्रोजेक्ट्स आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, और आप उनके ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। बट जो कम्युनिटी वेरिएंट होता है यू ऑलवेज प्ले विद द टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स, आपको जो है वो कंटेंट सेव करने का नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्रीवियस टारगेट जो मैंने रिसेंटली जिन पे हंट किया, सो ये उनके बारे में। सो मैं टेम्परेरी के साथ ही इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एंड अगर आप चीज़ों के बारे में लाइक टेस्टिंग कर रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें करें, तो यू कैन मेक सम नोट्स एज वेल। सो नोट्स के लिए जो है मैं चेरी ट्री यूज़ करता हूँ काफ़ी। सो मोस्टली लोग जो होते हैं वो मुझसे पूछ भी रहते हैं कि नोट्स बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करें। तो चेरी ट्री जो है, चेरी ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करता है। सो ये मेरे पास काफ़ी टेस्टिंग एंड प्रीवियस जो भी CTF मैंने खेले हैं बॉक्स के, तो ये उनके नोट्स वगैरह काफ़ी बने हुए मेरे पास। सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरफेस जो कि आपको देखने में मिलेगा। सो मेरे पास बेसिकली 2022 का वेरिएंट है, तो मैं अभी तक फिलहाल अपग्रेड उसको नहीं कर पाया। सो बब सूट करता क्या है? तो क्वेश्चन इज दिस कि बब सूट का मेन मकसद क्या है? सो व्हाट डज बब सूट डू इज कि आपके ये ब्राउज़र है, ठीक है। सो व्हाटएवर एक्शन यू आर परफॉर्मिंग, कल हमने बात की थी कि वो हमारे पास यहाँ पे HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ओके, अब HTTP की रिक्वेस्ट जो है वो तो ट्रैफिक से होके जा रही है, ठीक है, और वो हमारे पास जो है जो सर्वर है, ठीक है, क्लाइंट से वो सर्वर तक HTTP जो है रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। सो व्हाट डज वेब सूट डू इज के वो आपके पास ब्राउज़र लेवल पे उस वेबसाइट को इंटरसेप्ट कर लेता है। ओके, इंटरसेप्ट करने से क्या होता है कि आपका जो वेब सूट का एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको वो पूरी की पूरी जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो शो होना शुरू हो जाती है, एंड HTTP रिक्वेस्ट जहाँ पे होल्ड कर जाती है। सो फिलहाल ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रही, तो यहाँ पे होल्ड पे, एंड जो आपका ब्राउज़र होता है, ठीक है, वो भी गोल गोल घूम रहा होता है कि जो है वो किस टाइम पे जो रिक्वेस्ट जो है वो आगे जाएगी, तो ये घूमना बंद होगा, रिक्वेस्ट जो फॉरवर्ड आएगी एंड रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेडर्स हो सकते हैं, बॉडी का डेटा हो सकता है कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, एंड आप अपडेट करके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड करने से क्या होता है कि वो अपडेट हुआ हुआ डेटा जो होता है, ठीक है, वो यहाँ से होके जाता है और सर्वर जो होता है वो उसको लेता है, ठीक है, और जो उसका रिस्पॉन्स होता है बेसिकली वो भी इसके अंदर से ही होके जाता है। सो नॉर्मली अगर आप रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वो इंटरसेप्ट करने से क्या होगा कि आपके पास पूरा का पूरा रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट होकर वो ब्राउज़र के पास जाएगा। अगर तो आप चाहो तो आप टेम्परेरी इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हो,
ऑफ करने से क्या होता है कि आपका डेटा जो होता है रिक्वेस्ट है वो बगैर किसी इंटरप्शन के वो सर्वर तक जा रही होती है। मगर क्या होता है कि चूंकि आप एक इसकी प्रॉक्सी यूज कर रहे थे, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ वीपीएन, ठीक है, जो कि वीपीएन जो होता है वो लोकल पे यूज हो रहा होता है। तो लोकल पे होने से क्या होता है कि आपकी हर एक रिक्वेस्ट जो होती है वो बब सूट से ही होके जाती है। सो बेशक वो बीच में इंटरसेप्ट करंटली ना भी हो या वो होल्ड ना भी करे, बट स्टिल आप जो है वो उस रिक्वेस्ट को एज हिस्ट्री देख सकते हैं कि उस वेबसाइट ने क्या क्या चीज़ें एक्सेस की हैं। हो सकता है कि उसने 5 से 6 चीज़ें एक्सेस की हों। आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया है तो उसने कोई मल्टीपल चीज़ें रिक्वेस्ट की होंगी। पहली बारी में उसने फॉर्म भेजा होगा, दूसरी बारी में उसने फॉर्म को वैलिडेट करवाया होगा अगेन से, तीसरी बारी में उसने कुछ और डेटा आपसे लिया हुआ होगा। तो ऐसे हो सकता है कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट की फॉर्म में जो है वो डेटा भेज रहा हो। सो बब सूट जो है वो उसका मेजर ही काम होता है। इसमें मल्टीपल फीचर क्या है कि आप एक रिक्वेस्ट जो है उसको एक ऐसी टैब के अंदर भेज देते हैं कि जिसमें ये रिक्वेस्ट पूरी की पूरी आपके पास बनी भी आ जाती है वहाँ पे, और आप इसको बार बार यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे बार बार इस HTTP रिक्वेस्ट को मॉडिफिकेशन करते हैं और आपके पास वापस जो होता है वो HTML या JSON में जो कोड होता है वो आपके पास वापस आ जाता है। सो वापस आने के बाद जो है वो आप उसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे, एंड देन आप अगेन से कोई वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, एंड देन आप उसका बिहेवियर नोट करते हैं, आप उसकी सैनिटाइजेशन वैलिडेट करते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के मल्टीपल और भी फीचर हैं, ठीक है। एक फीचर जो मेजर ये यूज़ किया जाता है कि आप एक पैरामीटर चूज कर लेते हैं कि इसके ऊपर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। सो आप उस पैरामीटर को चूज करेंगे, ठीक है। चूज करने के बाद आप एक लंबी सी जो लिस्ट देंगे कि ये सारी पूरी लिस्ट है, आपने लिस्ट इस पर ट्राई करनी है। सो वो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि वो इस एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू चेंज करता जाएगा और आपने लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज दी हैं वो सारी की सारी वैल्यूज के साथ उसको रिक्वेस्ट करेगा। आप उसमें फिल्टर भी लगा सकते हो कि अगर उसमें रिस्पॉन्स में मेरे पास ये वैल्यू आ रही है तो मुझे बताए, नहीं आ रही तो भी बताए। फॉर एग्जाम्पल साइन इन का पेज है, यू हैव द ईमेल बट यू डोंट नो द पासवर्ड। सो आप इस पे जो है वो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सारे के सारे यूजर नेम जो होते हैं वो 1 बाय 1 ट्राई करता है। और आप फिल्टर इस बेस पे लगा सकते हैं कि अगर वो कहता है कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, जो मोस्टली एरर आ रहा होता है, तो वो एरर जो होता है अगर आप उस पर चेक लगा देते हैं तो अगर वो एरर नहीं आएगा तो वो तो भी आपको बता देगा किन किन पे आ रहा है, तो जिसकी बेस पर आप उसको ईजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन स्टोरी बिहाइंड द बब सूट। और बब सूट जो है वो इस छोटी सी लाइक आप कह सकते हैं कि पावर्स की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ों के ऊपर कर रहा होता है। सो जितनी भी हाई लेवल की टेस्टिंग होती है, आप बड़ी से बड़ी फर्म में चले जाएं तो वो टेस्टिंग इसी बब सूट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। सो मैनुअल अप्रोच, बट इतनी की ज़्यादा ताकतवर आपको अप्रोच देती है। इंटरेस्टिंग थिंग है कि बब सूट के साथ अभी इसका ब्राउजर अपना आना शुरू हो गया कुछ अर्से से। सो आपको मैनुअली दूसरा ब्राउजर कन्फिगर नहीं करना पड़ता, बट अगर आपको करना पड़े, आप फायरफॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं फ्रॉम द यूट्यूब कि वो चीज़ किस तरह से होगी। सो एट द मोमेंट हम इसका अपना जो है वो ब्राउज़र ही यूज़ करने वाले हैं, एंड हम जो वेबसाइट को देखने वाले हैं दैट विल बी डेफिनेटली पोर्टसुगर। सो वी हैव पोर्टसुगर हियर, एंड हम जो है इसमें जस्ट बब के बारे में देखते हैं कि क्या बब का पेज एग्जिस्ट करता है। ओके एक साइड पर हम लोग अपना बब सूट खोल लेते हैं। नाउ व्हाट वी विल सी इज कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है इंटरसेप्ट का बटन। सो इंटरसेप्ट जो है वो उस पर लिखा हुआ है कि इंटरसेप्ट इज ऑफ। अगर तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिक्वेस्ट, पेज को मैं ओपन करता हूँ, सो क्या हुआ है कि मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा पेज ओपन हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरसेप्ट इज ऑन, अब अगर मैं अगेन से पेज रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो ब्राउजर है, ठीक है, हो सकता है कि आपको बब सूट का कंटेंट बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, बट स्टिल इशू नहीं। आपको जैसे एक आइडिया बताना है कि अब क्या है कि कल हमने जैसे HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बात की थी कि वो कैसा होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप यहाँ पे पूरी HTTP रिक्वेस्ट प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है। हम लोग ये भी एंड पे देख सकते हैं कि खाली स्पेस है, खाली स्पेस के बाद कोई डाटा नहीं है। सो दैट्स वाई मतलब ये है कि कोई भी डाटा जो है वो नहीं जा रहा, एंड रिक्वेस्ट स्टिल यहाँ पे होल्ड पे है। सो हम पेज इसका अभी तक खोल नहीं पाए। मैं यहाँ पे चाहूँ तो फॉरवर्ड करूँ, चाहे मैं ड्रॉप कर दूँ, चाहे मैं कोई चीज़ चेंज कर दूँ। सो एट द मोमेंट मैं इसको फॉरवर्ड करने वाला हूँ।
सो फॉरवर्ड करने से क्या हुआ कि मेरे पास पेज ये वाला लोड हो गया, तो हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट। सो मोस्टली हमारे पास जो ब्राउजर एंड से दूसरे पेजेस पे या जो आपकी वेबसाइट चल रही होती है वो अपने जावास्क्रिप्ट जो होते हैं वो डिफरेंट वेबसाइट से इंपोर्ट कर रही होती है। सो उसकी जो रिक्वेस्ट होती हैं वो भी फ्रंट एंड के थ्रू आ रही होती हैं। तो सेम टाइम आपको उसको भी जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो ये गूगल पे बेसिकली इसकी रिक्वेस्ट जा रही है सारी। सो इवन कि वी कैन टर्न ऑफ द इंटरसेप्ट एट द मोमेंट अगर हम चाहें, अगर हम इस सब पेजेस या जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट हैं अगर हम लोग इनको कवर करना चाह रहे हैं। So again, intercept is on and I request google.com. So let's see what would happen कि मेरे पास google.com के ऊपर रिक्वेस्ट आ गई है। If I drop it, so PubSuite मुझे एक एरर दे देगा कि the request was dropped by the user. Again मैं खोलता हूँ, ठीक है, मेरे पास again से रिक्वेस्ट आई है and I try to make some modification. Like for example google.com है तो मैं इसको चेंज करता हूँ yahoo.com में। I don't know कि Yahoo का जो HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो जब मैंने किया तो गूगल का जो सर्वर है, ठीक है, उस पर एरर आया क्योंकि हमारे पास गूगल का जो सर्वर होता है, ठीक है, पहले उसके साथ हैंडशेक हो चुका। सो उस एंड पर हमें कोई भी दूसरी पेज की रिक्वेस्ट नहीं मिलती, यानी वहाँ पे yahoo.com का कोई भी साइट पड़ा हुई नहीं है, वहाँ पे google.com का ही है, तो उसने मुझे वो एरर दे दिया। बट फॉर एग्जाम्पल इंटरसेप्ट इज ऑफ एंड मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सर्च की कि जिसको मैं कैप्चर नहीं कर पाया, या मैंने एक बार कैप्चर कर लिया वो गई, अब मैं उसको दोबारा कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? क्या मैं दोबारा से वो पेजेस सारी फंक्शनलिटी दोबारा खोलूंगा, पूरे फॉर्म में दोबारा फिल करूंगा? नहीं। अगर हम इस प्रॉक्सी के अंदर जो हमारा इंटरसेप्ट वाला टैब होता है, ठीक है, इसके साथ हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास है HTTP हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री से क्या होता है कि हमने जो भी सर्च किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होती है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी google.com की, जो बेसिकली इसकी अपनी एक बिल्ड की हुई पोस्ट रिक्वेस्ट है। देन वी हैव द गेट रिक्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस दोनों आ रहे हैं। सो हम लोग रिस्पांस को भी देख सकते हैं कि क्या हमारे पास जो है इसमें वो कंटेंट आया है या नहीं। तो google.com के मेजर कंटेंट हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हुआ है। सो वैसे तो इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है कि ये बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो थ्रो कर रही होती है हमारे पास, बट स्टिल जो है वो आप देख सकते हैं कि सारा यहाँ पे कंटेंट है। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो है वो पोर्ट फिगर को, ये हमारे पास ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये PHP किसी फाइल को रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, एंड हमारे पास कोई डेटा पोस्ट पैरामीटर में जा रहा है, ठीक है, तो मैं कोई वेबसाइट जो है वो दोबारा से बार बार सर्च करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ, ठीक है, एनीथिंग, फॉर एग्जांपल वेब हैकिंग। हम देख सकते हैं कि हमारे पास रन टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तो चूँकि ब्राउज़र है, ठीक है, गूगल है, तो गूगल अपने बैकएंड से बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता है। तो आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं कि जिसमें सिर्फ जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं या जो उनका पैटर्न है उसकी बेसिस पर ही वो जो है फैच कर रहा है। सो मैं वेब हैकिंग के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ, ठीक है, सो मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट एक जनरेट हुई है, मैं उसको देख सकता हूँ, ठीक है, या मैं सर्च कर सकता हूँ पेज पे। आई डोंट नो कि प्रीमियम जो कम्युनिटी वेरिएंट है उस पर वो इस बारे में आपको करके देता है या नहीं, बट हमारे पास मोस्टली फिल्टर का ऑप्शन होता है कि जिस फिल्टर के बेस पर हम लोग उस पर सर्च। ओके, सो गेट रिक्वेस्ट मेरे पास है जिसमें मेरे पास ये सर्च का एक पैरामीटर है एंड ये सर्च गेट रिक्वेस्ट के थ्रू बेसिकली जो है वो सर्च करती है। नो आई वांट कि मैं मल्टीपल यहाँ पे इनपुट इसकी चेंज करूँ, डिफरेंट पैरामीटर चेंज करूँ एंड मैं वैलिडेट करूँ कि क्या मेरे पास कोई यहाँ पे इशू है या नहीं। सो यहाँ मेरे पास सेंड टू पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सेंड टू इंक्लूडर है, ठीक है, सेंड टू रिपीटर है एंड इस तरह की मल्टीपल है। सो मैं कंट्रोल और करता हूँ, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन आई हैव दिस टैब। इस टैब में क्या है कि मैं एक बार इसको रिक्वेस्ट करता हूँ एंड जो उसका रिस्पॉन्स बनता है मेरे पास, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं वेब हैकिंग से रिमूव करके मैं कहता हूँ वेब 101, अगर मैं प्लस हैकिंग लिख लेता हूँ, तो जो मेरे पास जो कंटेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो चूंकि यहाँ पे तो काफ़ी बड़े लेवल के पेजेस आ रहे हैं, बट जब आप API की टेस्टिंग कर रहे होते हैं या आप इस तरह के पॉइंट टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो होता है वो आपके काफ़ी स्पेसिफिक डेटा जो होता है वो आपके पास आ रहा होता है। और इवन कि जब भी आप लाइक डिफरेंट तरह के CTF खेल रहे होते हैं, तो CTF लेवल पे भी जो होता है वो यही होता है। सो हम लोग यहाँ पे जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज लैब के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस लैब। ओके, सो एक्सरसाइज गेम मेरे पास आ गया है। सो मैं प्रॉक्सी पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया था, आई जस्ट रिमूव द फिल्टर
एंड अब यहाँ पे मेरे पास ना सब वेबसाइट की हिस्ट्री शो हो रही है। सो मैं टारगेट लेवल पे जाकर मेरे पास जितनी भी वेबसाइट यहाँ पे अभी तक सर्च हुई है इस ब्राउजर के थ्रू वो सारी आ रही हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक्सेस गेम यहाँ पे आ रहा है। सो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड आई जस्ट एड इट टू द स्कोप के करके मैं दोबारा से प्रॉक्सी में जाता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर का कि शो ओनली इन स्कोप आइटम। मैं जब इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक जो स्कोप के अंदर जो वेबसाइट्स हैं सिर्फ उन्हीं का डेटा शो होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट प्लेइंग, तो आप देख सकते हैं कि बाकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पैरेलल पे गूगल खोल लेता हूँ अगेन से, मेरे पास गूगल की कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि मेरे पास गूगल मैंने स्कोप से बाहर निकाल दी है। तो ये आपको स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन टेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, इसके लिए गूगल अकाउंट रिक्वायर्ड है ना, आई डोंट नो कि मेरे पास कोई इस तरह की वेबसाइट है क्योंकि मैं पहले जिस पर प्रैक्टिस करता था। सो दैट साइट इज करंटली अनअवेलेबल ड्यू टू सम रीजंस, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग आइडिया कि हम लोग जो है उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वेबसूट के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा बहुत ज़्यादा कि यू गो फॉर द कोर्सेज। वेबसूट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप एटलीस्ट पेन टेस्टिंग वेब की प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले या वेब इवन के पोर्ट शुगर के ऊपर भी काम करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो इसको एक बार एटलीस्ट प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि जो है वो आपको एक आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। सब वेबसूट का आपको जितने अच्छे से आइडिया होगा तो आप जो है वो उतना ही उसको यूज़ कर सकते हैं। So still if you have any question you can ask me. And हाँ, about the operating system. So हम तब तक जो है यहाँ पे एक बेसिक एक्सरसाइज की लैब भी खोल लेते हैं। तो जस्ट एक दिखाने के लिए कि किस तरह से होगा, तो आप इस पे एक्सेस लैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको ओपन इन न्यू टैब कर सकते हैं कि ताकि आप सोल्यूशन जो है उसका बाद में व्यू भी कर सकें कि आप कौन से सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, so this is the website. मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ and just paste it in this browser and I open the port sugar, sorry the websuit. So मैं just remove कर रहा हूँ उसको from the scope and मैं जो अभी मैंने वेबसाइट सर्च की I'm going to add it into the scope, re-enable, and अभी मैं देख सकता हूँ कि मैं specifically जो है वो यही इसी वेबसाइट का कंटेंट देख रहा हूँ। So मैं just ये चाहता हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट एंड CSS की फाइल्स हैं, ठीक है, ये हाइड हो जाए मेरे पास। अगेन से मेरे पास SVG भी आ रहा है, सो मैं यहाँ पे जो है वो SVG भी इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, सो अब मेरे पास जो है वो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो शो नहीं हो रहा। आई सर्च एनीथिंग, फॉर एग्जांपल www, सो इनपुट टेस्टिंग का मैं मोस्टली जो है वो पहले ये चीज़ चूज़ करता हूँ। सो हियर आई हैव द पोस्ट रिक्वेस्ट, सॉरी जो गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, मेरे पास गेट रिक्वेस्ट का डेटा यहाँ से गया एंड देन आई हैव सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट गॉट बैक एंड देन मेरे पास अगेन से एक HTTP रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, वेब सॉकेट की है इसमें एंड देन जो है वो मेरे पास प्रोटोकॉल इसका आ रहा है। सो वेब सॉकेट का हमारे पास यहाँ पे कंटेंट रिक्वेस्ट नहीं है। सो व्हाट आई कैन एक्सप्लॉइट हियर इज कि मैं क्या काम कर सकता हूँ कि यूजिंग द वेबसूट जो मैं इसको अपनी ईज के लिए यूज़ करूँगा। सो नाउ आई एम टू टेस्ट दिस इनपुट फील्ड, जो मैंने यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, ठीक है, आई कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक सर्च का पैरामीटर के थ्रू जा रहा है। सो आई कैन सेंड इट टू द रिपीटर टैब, इसके अंदर जाके मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ एंड आई रिमेंबर कि मेरे पास जो है वो ज़रूर रिस्पॉन्स इसका वापस आ रहा होगा, बिकॉज अगर मैं सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन में टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्ट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि यहाँ पे रिस्पांस हमारे पास वापस आ रहा है। अच्छा सॉरी कि इसका टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा होता है तो मे बी आपको प्रेजेंटेशन में उतना विजिबल ना हो, बट स्टिल हम इसके बारे में टेस्ट कर सकते हैं इसको आगे फर्दर। सो विदाउट गिविंग एनी स्पेस आई जस्ट ट्राई आउट सम HTML कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल H1 जो मैंने बेसिक एक्सरसाइज की पेलोड के बारे में बात की थी, एंड देन द क्लोजिंग H1 टैग। I just send the request and I click on the match one। तो मेरे पास क्या हुआ है कि मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया
उस रिस्पॉन्स के अंदर इस लाइन के बाद जो मैंने आगे पेलोड डाला है दैट इज एज इट इज, कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं हुई और ये हाईलाइटेड भी होके आ रहा है। सो हाईलाइट होने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो पेलोड है, ठीक है, वो हमारे पास अनसैनिटाइज्ड है। तो मैं यहाँ पे पॉसिबल है कि मेरे पास जो एक्सेस का वर्ड है, ठीक है, वो मेरे पास लाइक H1 के टैग में आ रहा है जो ब्राउज़र एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको एक फ्रंट एंड की फॉर्म में देखूं, सो हमारे पास प्रिटी रॉ हेक्स एंड रेंडर का ऑप्शन भी है, तो वो उसकी ब्राउज़र की तरह जो है वो उसको आपको वो करके दिखाता है। सो आपको एक कंटेंट जो है वो यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आप रॉ में देखते हैं और आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास ख़ास फ़र्क क्यों नहीं आया था इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो H1 के टैग के अंदर ही है। सो हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, सो वी कैन गिव सम CSS स्टाइल, बट रिमेंबर कि अगर आप इसमें स्पेस देते हैं तो स्पेस से क्या होता है कि वो पैरामीटर का जो एरिया होता है वो टूट जाता है। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू ट्राई सम सॉर्ट ऑफ लाइक URL एनकोडिंग, ताकि उसके अंदर स्पेस ना आए, क्योंकि URL में कभी भी स्पेस नहीं होती। सो एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया। अगर आप ये स्टिल चाहते हैं, ठीक है, कि लाइक मैं इमेज का टैग डालता हूँ, इमेज अगर स्पेस %20 होता है, src is equal to x, that's it, and then we can see कि हमारे पास ये भी एज इट इज आ रहा है। नाउ आई वांट कि मैं इसको ब्राउजर में देखना चाहता हूँ, तो स्टिल यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। आप रिक्वेस्ट इन ब्राउजर करते हैं इन ओरिजिनल सेशन, आप जैसे लिंक को कॉपी करें, जब वेबसाइट का एक अपना लिंक होता है, ओपन ए न्यू टैब, पेस्ट इट इन द ब्राउजर, एंड ये हमारे पास जो है वो कंटेंट आपका जो इस रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स आना है वो आपको ब्राउजर में डायरेक्टली दिखा देगा। जिससे हमारे पास यहाँ पे इमेज जो है वो एक थोड़ी सी हमें दिखाई दे रही है। सो अब अगर मैं यहाँ पे कोई पेलोड डालना चाहूँ कि जो मेरे पास वैलिड है, जैसे हमने कल भी पेलोड ट्राई किया था, सो SVG का पेलोड था, SVG ऑन लोड इज इक्वल टू कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। ओके, सो अब अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो मेरे पास मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो SVG का टैग है दैट इज वैलिड और प्रॉपरली HTML के फॉर्मेट में आ रहा है। सो आई कैन रिक्वेस्ट इट इन द ब्राउजर, आई जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट हियर। ओके, सो हमारे पास समहाउ ये वर्क नहीं किया है। ओके, सिंगल कोट्स की वजह से। सो एट द मोमेंट हम जस्ट जो है वो सिंगल कोट्स को इग्नोर करते हुए हम इसको इस तरह से ट्राई आउट कर सकते हैं, पर हमारे पास वैसे एग्जीक्यूट कर देता है समहाउ, जिससे हमारे पास आउटपुट उसमें नहीं है। सो अगेन रिक्वेस्ट इन द ब्राउजर, लेट्स कॉपी इट। तो हियर हमारे पास जो है वो हमारा जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली SVG टैग के थ्रू एग्जीक्यूट कर गया। सो यूजिंग वेबसूट हमें क्या पता लगा कि हमें इजीली HTML का कोड भी दिखाई दे रहा था, एंड वी कुड वैलिडेट कि हमारे पास वो क्या क्या चीज़ें सैनिटाइजेशन आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही। अगर आप ये चीज़ जाकर फेसबुक गूगल पर ट्राई करेंगे तो वो नहीं वर्क करेंगे, क्योंकि उन पे प्रॉपरली सैनिटाइजेशन आ रही होती है। तो वो सैनिटाइजेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर, कौन कौन सा मेरा कीवर्ड है जो कि फिल्टर आउट हो रहा है, एंड देन मैंने उसको कैसे बाईपास करना है। सो आपको वेबसूट इस तरह से भी हेल्प करता है। दैट्स वाई जितने बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बड़े बग बाउंटी हंटर एंड एवरी एक्सट्रीम लेवल जो पर्सन है वेब के ऊपर, वो भी वेबसूट ही यूज़ करता है। सो वेबसूट के बारे में आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली आइडिया हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जस्ट 1-2 मिनट में OS के बारे में बात करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक ऑफेंसिव सिक्योरिटी का प्रोवाइडेड, ठीक है, खाली। सो रिमेंबर कि अगर आप सबसे पहले ये देखें कि आप लिखते हैं टूल्स लिस्ट कि काली के अंदर टूल्स कौन कौन से हैं, एंड देन आप अपने आप को देखते हैं कि आपने किन टूल के साथ काम करना है। सो यू कैन सी कि देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स, अ लॉट ऑफ बंच ऑफ स्टफ। इसमें से अगर आप काली इंस्टॉल करते हैं, सो आप कितने टूल्स ऐसे हैं कि जो आप अपने वेब पेन टेस्टिंग में यूज़ कर रहे होंगे? आई गेस हार्डली 1 to 2 टूल्स, जिसमें आपके पास पोर्टस्विगर का वेबसूट होगा, कम्युनिटी वेरिएंट पहले से मौजूद होता है, एंड 1-2 टूल्स आपके पास वेब सिक्योरिटी के आ जाते हैं। वैसे मैंने भी, हालांकि अब वैसे तो मैं मतलब एज अ होस्ट यूज़ करता था, बट नाउ डेज इस लैपटॉप में विंडोज़ है तो मैंने VM के अंदर काली इंस्टॉल किया हुआ है।
बट चूँकि आई प्ले हैक द बॉक्स और इसके अलावा एडी के कुछ लैब्स अगर सॉल्व करनी हो तो उन चीज़ों के लिए मुझे गाली जो है वो कंपेरेटिवली असिस्ट करता है इंस्टेड कि मैं दूसरी टूल्स वगैरह कुछ इसमें इंस्टॉल करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे करंटली लेस एक्टिव हूँ बिकॉज मेरे पास होस्ट ओएस के तौर पे नहीं है। बट जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी लाइफ में सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, मेरा सबसे ज़्यादा जो अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, दैट इज़ बैक बॉक्स। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे साथ जो जितने भी अच्छे पेन टेस्टर्स हैं वो सब भी मेरे साथ बैक बॉक्स ही यूज़ करते थे, और वो अभी भी बैक बॉक्स यूज़ करते हैं, और मैं भी अभी बैक बॉक्स ही यूज़ कर रहा होता अगर इस लैपटॉप में जो है वो मुझे विंडोज़ के अलावा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का इशू ना होता। सो बैक बॉक्स इज़ वेरी लाइट, ठीक है, इसमें आपको कुछ टूल्स पहले से भी मिल जाते हैं, ठीक है, एंड आप उसमें टूल और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखनी चाहिए, ठीक है, वो आती है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर आप इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में देखें, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करें हमेशा सिस्टम रिक्वायरमेंट देखें पहले, उसके अंदर टूल्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो इसमें देखिए आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या बनती है। आपको रैम कितनी चाहिए? ओनली 1 GB ऑफ रैम। सो अगर आपके पास 8 GB रैम है, इसको मैक्सिमम 1 GB रैम चाहिए, तो आप ये सोचें कि आपके प्रोसेसेस, आपकी वर्किंग सिस्टम, इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, वो कितना एफिशिएंटली वर्क करेगा। देन जो है वो उसको स्पेस कितनी हार्ड डिस्क की चाहिए? ओनली 20 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर नॉट जस्ट ओनली इंस्टॉलेशन, बल्कि इसके अपने सारे टूल्स, इसकी सारी चीज़ें, सेटअप एक्सेट्रा। ग्राफिक कार्ड की जो कंपैक्टिबिलिटी है, ठीक है, ओनली 600 इंटू 800 पे भी ये कंपैक्टेबल है। सो ये दोनों बेनिफिट, ठीक है, जो है ना इसके, वो बहुत ज़्यादा इतने वो बेहतर हैं कि आपको जो है वो सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बनाते हैं। एंड देन इसमें अगर हम लोग बिल्ट इन टूल्स देखें, तो इसमें जो है वो तो इसमें जो मेजर टूल्स जो उसमें इंस्टॉल हुए हैं वो काफ़ी सारे हैं जो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए हैं। मेटास्प्लॉइट है, ठीक है, एनमैप है, ओपनवीएस है, इटरकैप भी समहाउ जो है थोड़ा बहुत यूज़ में आता है, वाईशार्प कुछ यूज़ में आता था एसक्यूएल मैप के अंदर पर, और जो बाकी आपको चीज़ें अपने लिहाज से रिक्वायर्ड होती हैं, जो मैं बहुत सारे अपने बिल्ट इन टूल यूज़ करता हूँ, तो वो आप स्पेसिफिकली जो है वो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। देन द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो बहुत ही लाइट है, ठीक है, दैट इज लाइनक्स लाइट। ये इंटरफेस वाइज मुझे दोनों बहुत पसंद है, इनका फ्रंट एंड बहुत प्यारा है, बहुत लाइट है, और आप जो है वो अपने लिहाज से मल्टी से टूल्स वगैरह अपने कन्फिगर कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल बिल्ड कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा नहीं है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बड़े हैं इनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें जो है वो बहुत कम है। तो ये आपको जो है वो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली मिलता है, और इसमें जो है वो बिल्ट इन टूल्स कोई भी नहीं होते इस तरह के सिक्योरिटी के, ये नॉर्मल यूजेज के लिए, बट आप इसमें जो है वो अपने लिहाज से सारे टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये भी जो है वो लेस देन 1 GB पे चलता है, एंड 1 GB पे इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर कुछ लोग ब्लैक आर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो ब्लैक आर्ट को भी देख लेते हैं इसी तरह से, सिस्टम रिक्वायरमेंट उसकी देख लेते हैं क्या है। तो मिनिमम जो है वो आपके पास 6 GB रैम होनी चाहिए सिर्फ इसको वर्क करने के लिए। नॉर्मली जो है वो 15 GB की ISO इसकी इमेज बनती है, ठीक है, बट रैम जो है आप 25-15 GB अब ISO बहुत बड़ी होती है, नॉर्मली 2-3 GB की ISO होती है, 4 GB की। सो 6 GB ऑफ रैम आपको कम से कम चाहिए, तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू करती है। इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, अगर आप ब्लैक आर्ट्स को देखें तो इस तरह से, बट अगर आप इसमें टूल्स के बारे में बात करें, ठीक है, टूल्स कितनी है इसके अंदर, तो ब्लैक आर्ट्स के अंदर 2800 प्लस टूल्स हैं तकरीबन। तो इतने ज़्यादा टूल्स आप डेली लाइफ में कहाँ का यूज़ कर रहे होते हैं? कहीं भी नहीं। तो ये टूल मोस्टली आपको यूज़ करने में वैसे भी प्रॉब्लम होती है। देन रिमेंबर कि आपका जो बैश होता है, ठीक है, चलो बैश तो सेम होता है बट इसके वेरिएंट्स होते हैं हमेशा। तो देयर इज डिबेन एक होता है, डिबेन वर्सेस बहुत सारे होते हैं, तो इसमें जो होता है वो आर्च होता है। अब मैं जो बंदा हूँ, ठीक है, मैं यूबंटू इन पे इन मतलब का ज़्यादा आदी हूँ डिबेन का। अब मेरे कोई भी टूल इंस्टॉलेशन चीज़ें होती हैं, पैकेजेस वगैरह सारी, वो मेरे इन पे हाथ बैठा हुआ है। सो व्हेन इट कम्स टू आर्च, तो आर्च में जो है वो वैसे भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, बट इफ यू टॉक अबाउट ब्लैक आर्च, तो ब्लैक आर्च बहुत हैवी है, सो आई कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद द आर्च, अब आर्च यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज मंजारो।
Manjaro इज़ वेरी लाइट वेट, जो कि हर बंदा यूज़ करता है, यूज़ बाय द डेव्स, यूज़ बाय द अदर पीपल, ठीक है, जो आईटी के अंदर होते हैं, ठीक है, और यूज़ बाय द सिक्योरिटी इंजीनियर एज वेल। और मेरे साथ पेन टेस्टर कई ऐसे हैं इस्लामाबाद में कि जो मंजारो को एज अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली यूज़ करें। बट इफ यू आस्क माय रिकमेंडेशन, तो मेरी तरफ से मुझे बैक बॉक्स ही है, ठीक है। अगर आप बैक बॉक्स, अगर आप लाइनक्स सीखना भी चाहते हैं तो लाइनक्स लाइट है, इसको आप वीएम में इंस्टॉल करें, इसको आप होस्ट में इंस्टॉल करें, इसकी परफॉर्मेंस हमेशा से तेज़ है। बट मेरे पास कुछ और भी मल्टीपल तरह के हैं, ठीक है, जैसे रमनेक्स है, ये मैं काफ़ी टाइम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो रमनेक्स स्पेशलाइज है, ठीक है, फॉर एनालिसिस है, ठीक है। तो आपको मेलवेयर पे काम करना है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, तो उस चीज़ में जो है वो रमनेक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन भी होती है। सो यू कैन मेक श्योर कि आप जो है वो उन चीज़ों पे उस तरह से टेस्ट करें। अच्छा, फेडोरा जो है वो मैंने नहीं यूज़ किया, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, तो जिसका जो है वो बहुत ज़्यादा स्टफ हो जाता है। सो किस टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भाग लिया है। ओके, सो हफ्सा, मेक श्योर टू ड्रॉप द व्हाट्सएप लिंक, अगर आपका कोई ग्रुप है इस तरह का तो यू कैन ड्रॉप इट देयर। बट ये है कि मैंने आपको स्लाइड मैं आपको एक बार अगेन से भी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो उसमें ये है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, 2-3 के लिंक जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए। बट बूट कैंप का कोई ऑफिशियल है या नहीं, अगर हफ्सा है तो आप उनको चैट में बता सकती हैं। ओके, सो पेन टेस्टर के लिए जावास्क्रिप्ट ज़रूरी है। देखें, अगर आप एक्सेस जो है वो चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं एक्सेस को, एंड यू डोंट नो इवन नथिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, तो आप एक लिमिट तक ही एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। किस लिमिट तक कि जो कंटेंट आपको नेट से मिलता है, जो पेलोड मिलते हैं आपको, अगर आपको उससे थोड़ा सा भी बियॉन्ड जानना है, या आपको कोई फायरवॉल मिल जाती है, या आपको कोई किसी तरह की सैनिटाइजेशन मिल जाती है, उस केस में वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देन आपको वो बाईपास कैसे करोगे, उसके लिए एटलीस्ट आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में इतनी एसेंशियल पता हो कि वो काम कैसे करती है। आपको ये नोटिस करना होता है हाउ थिंग्स वर्क, नॉट इन दिस वे कि आपको पूरी पूरी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो, बिकॉज आपने बिल्ड नहीं करनी, बट स्टिल आपके पास आइडिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको जो है वो टेस्टिंग, आपके लिए पेन टेस्टिंग आसान होगी। एंड इवन के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक जो पर्सन है कि जिसने आईटी में काम किया, जॉब की है इनिशियली, एंड देन वो आईटी के बाद सिक्योरिटी में जॉब किया, तो उससे बेटर जो स्ट्रॉन्ग पर्सन सिक्योरिटी में कोई नहीं होता, क्योंकि उसने अपने लाइफ के 3-4 साल आईटी में इतने लगाए हुए होते हैं कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट आईटी, एंड जब उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, सो ही नोज एवरीथिंग। एंड टॉकिंग अबाउट बग बाउंटी, सो बग बाउंटी जो है ना वो थोड़ी सी पेन टेस्टिंग से डिफरेंट हो जाती है। सो इन पेन टेस्टिंग यू ट्राई टू लाइक कवर एवरीथिंग, ठीक है, कि जो आप जो है वो इन चीज़ों के बारे में जब आप पेन टेस्टिंग कर रहे थे, आपको सारी वेलिबिलिटीज कवर करनी होती है, आपको ओवरऑल करना होता है। एंड बग बाउंटी गिव्स मोर आउटपुट कि अगर आपको स्पेसिफिक वेलिबिलिटीज में वेल स्पेशलाइज्ड हैं, लाइक आपको अच्छे से बाईपास करने आती हैं चीज़ें, ठीक है, तो देन यू आर गुड टू गो विद द बग बाउंटी। बट अगर आपको पेन टेस्टिंग में जाना है तो पेन टेस्टिंग में स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा ओवरऑल जो प्रोग्रेस आपकी होती है, ओवरऑल वेलिबिलिटीज के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में, टॉप 10 एवेस के, इस तरह की चीज़ें सारी, तो वो ज़्यादा आ जाती है। ओके, उसके बाद है कि आई हर्ड अबाउट द हाइप सराउंडिंग साइबर सिक्योरिटी एंड द प्रॉमिसिंग फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो रिमेंबर के जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कम है, बाहर भी काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देयर आर जॉब, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब नहीं है, बट एक आईटी कंपनी है, ठीक है, दे हैव 100 एम्प्लॉयज एंड दे आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि उसमें से 90 सिक्योरिटी के होंगे? नहीं, उसमें से हो सकता है कि 80 प्लस जो हैं वो होंगे डेव्स, जो कि एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, एंड उनका काम एप्लीकेशन बिल्ड करना है, ठीक है, और 10 से 15 मैक्सिमम लोग होंगे अगर एक बहुत एक अच्छी फर्म है कि जो सिक्योरिटी के लोग हायर करेगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो कंपनीज ही बहुत कम है कि जो सिक्योरिटी पे काम कर रही हैं। सो इवन के लाइक मेरा जो हर एक बंदे का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कुछ बंदे चीज़ों को जल्दी गेट भी कर लेते हैं, कुछ लेट गेट करते हैं, बट माई रिकमेंडेशन इज कि फर्स्ट गो फॉर द आई एंड एटलीस्ट आप 2-3 साल आईटी के अंदर अच्छे से लगाओ, सो यू गेट लॉट ऑफ आइडिया अबाउट योर फील्ड, योर अबाउट आईटी, योर फर्स्ट ऑफ योर बिल्डिंग। एंड अगर आप उसमें एप्लीकेशन बिल्डिंग की तरफ जाते हो तो दैट इज़ सो गुड, क्योंकि आप अगर आप वेब बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने वेब के बैकएंड पे अच्छे से काम किया, सो आफ्टर दैट यू कैन वर्क ऑन द सिक्योरिटी एज वेल। फिर आप बिल्डिंग परस्पेक्टिव से सिक्योरिटी बिल्ड करो या पेनिट्रेशन की तरफ जाओ,
आप दोनों पे जा सकते हो। बट वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड इन पाकिस्तान, इसके बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकता कि इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में रुझान सिक्योरिटी का बहुत कम है। बट फर्म्स हैं, हायर करती हैं कंपनी, ये बात नहीं है। आप गूगल करेंगे, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो पेन टेस्टर बहुत ज़्यादा हैं कि जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं। Okay, so I guess no more questions. अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी, आई एम हियर। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी ऑन प्लेटफॉर्म्स। मैंने सामने की में सीखी, तो जस्ट फील फ्री टू टेक्स्ट मी, नो वरीज। एंड टुमारो का जो सेशन होगा, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग अगेन कि मेक श्योर दैट यू हैव बब सूट्स and make sure you have hack the box. Okay. Okay, so then can you please repeat what to do before going to learn on port sugar? So port sugar पे जाने से पहले एटलीस्ट आप बब सूट का एक अच्छे से हैंड्स ऑन कर लो, आपको अच्छे से पता हो कि आप बब सूट को कैसे यूज़ कर रहे हो। एंड देन अगर आप जिस वल्नरेबिलिटी के बारे में काम करने जा रहे हो, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने जा रहे हो, तो आप पहले से उसको पढ़ लो कि वो वल्नरेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉइट कैसे करनी है। क्या मतलब उस वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ो कि होता क्या है। जैसे मैंने टेम्पलेट इंजेक्शन से पहले मैंने टेम्पलेट के बारे में बताया कि टेम्पलेट क्या होता है। सो सिमिलरली जो है वो आप इस तरह से उसके बारे में पहले से आप पढ़ लोगे, देन आपको वो काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा। एंड बब सूट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो आई गेस वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि इस इवेंट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, जस्ट फील फ्री टू गो टू टेक्स्ट मी। एंड देखिए, इसका कोई आंसर नहीं है कि मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, मैं आपकी यहीं पे लिंक भी ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, वो मैं ग्रुप में भी ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का मेरे एक ही फेवरेट पर्सन है ऑन यूट्यूब, लाइव ओवरफ्लो। सो उसकी एक वीडियो है इसके ऊपर, ओके, दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग। इस वीडियो से ना आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये लिंक जो है वो अफसर को भी जो है वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो उससे जो है वो आपको ग्रुप में भी ये लिंक मिल जाएगा। यस, डे 2 कल जो है वो हमारा मोस्टली प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होगा, ठीक है। यू विल हैव द बब सूट, आपको उस पर थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन होना चाहिए, ठीक है। यू विल रीड अबाउट LFI, द लोकल फाइल इंक्लूजन, जिसके बारे में मैंने बताया। एंड कल जो है वो हम लोग हैक द बॉक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक में आपको लोकल फाइल इंक्लूजन जो है वो लाइव सॉल्व आउट करना होगा। तो हम लोग कुछ ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल टूल्स के बारे में बात करेंगे, तो टोटल जो होगा वो हैंड्स ऑन होगा। सो ओके, आई एम साइनिंग ऑफ। Thank you so much everyone for joining, and now it's up to Hafsa. Also, tomorrow we have a quiz and we will be giving free giveaways of Data Camp access. So don't forget to join us tomorrow as well. And thank you so much everyone for joining. And I'll be waiting tomorrow as well for your. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.